Today your topic is biosynthesis of triacyl glycerols. Before going towards biosynthesis of triacyl glycerol, let's introduce triacyl glycerol first. So triacyl glycerol, as we have already studied, they are also known as triacyl glycerides, are lipids, are fats. ठीक है, इनके जो दूसरे नाम हैं जिनसे हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, ट्राइएसाइल ग्लिसरोल भी इनको कहा जाता है, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड भी इनको कहा जाता है, एंड वी आल्सो कॉल देम लिपिड्स आर फैट्स इन कॉमन वर्ड्स. तो अभी ये ट्राइएसाइल ग्लिसराइड्स या ग्लिसरोल्स क्या चीज़ हैं? दे आर न्यूट्रल फैट्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी. ठीक है, वही बात बता रहे हैं. ट्राइएसाइल ग्लिसरोल या ट्राइएसाइल ग्लिसराइड्स भी कहा जाता है. और एक्चुअली ये है क्या चीज़? दे आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरोल. एज द नेम इंडिकेट, यहाँ पर क्या वर्ड है? ट्राइएसाइल. ट्राइएसाइल मीन्स, ट्राई मीन्स 3 एंड एसाइल मीन फैटी एसिड. सो दे कंटेन 3 फैटी एसाइल और फैटी एसिड एंड दे आर लिंक्ड विद ग्लिसरोल. अब ग्लिसरोल के साथ जो इनका लिंकेज है उसको कहा जाता है ईस्टर लिंकेज. ठीक है, द लिंकेज ऑफ दिस फैटी एसिड्स विद ग्लिसरोल इज नोन एज ester linkage. Here in this figure, this portion is glycerol and this carbon oxygen carbon linkage is known as ester linkage, and these things that are shown in green are actually the fatty acids. So in triacyl glycerols, three fatty acids are linked with this glycerol molecule via this ester linkage. Similarly, they are widely distributed in both plants and animals. In animals, they are present in the form of fats, while in plants, they are present in the form of oils. And they are insoluble in water. ठीक है, ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स क्या हैं? दे आर insoluble in water. और insoluble इस वजह से हैं because they are non-polar. ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स are non-polar while water is polar. और फार्मूला इनके लिए है like dissolve like. लाइक डिज़ोल्व करते हैं लाइक को. इट मीन्स कि जो पोलर होंगे वो पोलर में डिज़ोल्व होंगे, नॉन पोलर में डिज़ोल्व होंगे. सो एज दिस ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स आर नॉन पोलर, so they will be dissolved only in non-polar, while water is polar, so that's why they are insoluble in water. In our bodies, in human bodies or in animals, these fats are primarily present in the adipose tissue. And adipocytes of adipose tissue, the cells that are present in the adipose tissue are known as adipocytes, and they are specialized for the storage of triacyl glycerols. ठीक है, adipose tissue में मौजूद जो cells हैं adipocytes, वो स्पेशली इसी बात के लिए डिज़ाइन किए गए हैं कि वो triacyl glycerols को स्टोर करें. अच्छा, अब ये स्टोर किस फॉर्म में होते हैं? दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स. ठीक है, दिस आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स इनसाइड द सेल एंड दे आर डिस्पर्स्ड इन होल ऑफ द इंटायर साइटोप्लाज्म. पूरे साइटोप्लाज्म में ये ऐसे डिस्पर्स्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं. स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स देखें. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरोल मॉलिक्यूल. When one fatty acid is attached with the carbon number 1, with the first carbon, then we call it 1 monoacyl glycerol. Similarly, if this fatty acid is attached with the second carbon, this is the second carbon and this is glycerol molecule, so we will call it 2 monoglycerol. Mono means 1, acyl glycerol mean के acyl mean fatty acid, glycerol mean glycerol. So if this fatty acid, this acyl group is present at carbon number 2 of this glycerol molecule, then we will call it 2. Mono means के एक fatty acid attached है glycerol molecule के साथ at carbon number 2. अच्छा, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 दोनों के साथ अगर acyl ग्रुप मौजूद है, fatty acid मौजूद है, तो हम इसको क्या कहेंगे? 1, 2 and diacyl means 2 fatty acids are attached with this glycerol molecule, so 1, 2 diacyl glycerol. If 3 fatty acids are attached with the glycerol molecule, then we will call it triacyl glycerol. यहाँ पे हम 1, 2, 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 ही कार्बन है glycerol molecule में और तीनों के साथ ही fatty acid attached है,
तो पोजीशन अगर हम इंडिकेट ना भी करें तो ट्राई का मतलब है 3, और 3 अगर हैं तो इट मीन्स कि तीनों इंडिविजुअली हर एक कार्बन के साथ अटैच है, तो यहाँ पे नंबर मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता. सो सिंपली वी कॉल इट ट्राई एसाइल ग्लिसरोल. तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन कि ट्राई एसाइल ग्लिसरोल्स क्या चीज़ हैं, कहाँ पर ये हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं, और इसके अलावा इनका स्ट्रक्चर क्या है. अब इनके बायोसिंथेसिस के ऊपर आते हैं कि हमारा बॉडी इनको सिंथेसाइज कैसे करता है. ठीक है, हमारा बॉडी ट्राई एसाइल ग्लिसरोल्स को कैसे सिंथेसाइज करता है. ओके, सो दिस ट्राई एसाइल ग्लिसरोल्स आर synthesized both in our liver and in adipose tissue from ग्लिसरोल 3-फॉस्फेट. ठीक है, ट्राई एसाइल ग्लिसरोल सिंथेसाइज होते हैं फ्रॉम ग्लिसरोल 3-फॉस्फेट, जिसको आगे हम रिप्रेजेंट करेंगे G3P से. G मीन्स ग्लिसरोल 3 and phosphate. So this tri-acyl glycerols are synthesized from glycerol 3-phosphate in both liver. ठीक है, लीवर में भी सिंथेसाइज होते हैं, एंड इन एडिपोज टिश्यू जो हमारे स्किन के बीनीथ फेट्स मौजूद हैं उसमें भी सिंथेसाइज होता है फ्रॉम ग्लिसरोल 3-फॉस्फेट. अच्छा, अब ये ग्लिसरोल 3-फॉस्फेट लीवर में कैसे बन रहा है और एडिपोज टिश्यू में कैसे बन रहा है, वो दोनों का डिफरेंट मैकेनिज्म है. बोथ हैव द सोर्सेज ऑफ ग्लिसरोल 3-फॉस्फेट विच प्रोवाइड ग्लिसरोल मोइटी for the tri-acyl glycerol synthesis differ in liver and adipose tissue. ठीक है, एडिपोज टिश्यू और लिवर में दोनों का मैकेनिज्म डिफरेंट है कि वो किस तरीके से ग्लिसरोल 3-फॉस्फेट को सिंथेसाइज करते हैं. तो पहले आते हैं लीवर के ऊपर. लीवर में जो ग्लिसरोल 3-फॉस्फेट बन रहा है ट्राई एसाइल ग्लिसरोल की बायोसिंथेसिस के लिए, तो वो 2 तरीकों से बन सकता है. It may be formed from the reduction of dihydroxyacetone phosphate. ठीक है, डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट में जब रिडक्शन होती है तो उसके रिजल्ट से भी ग्लिसरोल 3-फॉस्फेट बन सकता है लीवर में. दूसरा तरीका क्या है कि अगर वहाँ पर मौजूद ग्लिसरोल है और उसकी फॉस्फोरिलेशन हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लिसरोल काइनेज, तो तब भी आपके पास ग्लिसरोल 3-फॉस्फेट बन सकता है. और दोनों तरीकों से जो आपके पास ग्लिसरोल 3-फॉस्फेट बन गया है, now this can further be converted into tri-acyl glycerol. Similarly, in adipose tissue, the glycerol 3-phosphate is formed only from the reduction of dihydroxyacetone phosphate. ठीक है, एडिपोज टिश्यू में आपके पास सिर्फ एक ही पाथवे है. ये जो दूसरा पाथवे है फ्रॉम द फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लिसरोल, ये वाला पाथवे एडिपोज टिश्यू में मौजूद नहीं है, और वो इस वजह से बिकॉज द एंजाइम दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द catalysis of this reaction, that is glycerol kinase, it is not present in adipose tissue. So that's why this reaction will not occur in adipose tissue. Only the reduction of dihydroxyacetone phosphate can occur, and that's why this glycerol 3-phosphate can only be formed from dihydroxyacetone phosphate in the adipose tissue. These are the chemical reactions for both the reduction and phosphorylation reaction. ठीक है, अगर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की रिडक्शन होती है तो उसके लिए हमें चाहिए होगा NADH और हाइड्रोजन पॉजिटिव, एंड द एंजाइम दैट इज यूज्ड इज ग्लिसरोल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज. इसके रिजल्ट से ग्लिसरोल 3-फॉस्फेट और NAD पॉजिटिव बनता है. सिमिलरली फॉस्फोरिलेशन में क्या होगा कि ग्लिसरोल कंबाइन होगा ATP के साथ in the presence of enzyme glycerol kinase, and as a result glycerol 3-phosphate and ADP is formed. तो ये आपके हो गए दोनों रिएक्शंस. अच्छा, इसके बाद है केमिकल रिएक्शंस जिनके थ्रू बायोसिंथेसिस होती है. पिछली स्लाइड्स में हमने ये पढ़ लिया है कि लिवर में ये कैसे बनेगा, किन किन सोर्सेज से बनेगा, और एडिपोज टिश्यू में ये कैसे बनता है. अब ग्लिसरोल 3-फॉस्फेट की फॉर्मेशन आपने कर ली है. ग्लिसरोल 3-फॉस्फेट के बाद, ठीक है, ग्लिसरोल 3-फॉस्फेट जो लिवर और एडिपोज टिश्यू में बन गया है, अब ये आगे जाकर फैटी या ट्राई एसाइल ग्लिसरोल की फॉर्मेशन कैसे कर रहा है. इट रिक्वायर्स 4 स्टेप्स. The first step is conversion of fatty acid into coenzyme A derivative.
ठीक है, फैटी एसिड्स का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो इनएक्टिव फॉर्म है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, फैटी एसिड्स की एक्टिवेशन होगी एंड इट्स एक्टिवेटेड फॉर्म इज फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। So in the first step, these fatty acids are converted into fatty acyl coenzyme A derivative. दूसरे स्टेप में क्या होता है, फॉस्फेटिडिक एसिड की फॉर्मेशन होगी जब दो मॉलिक्यूल्स फैटी एसाइल कोएंजाइम A के रिएक्ट करेंगे with when two molecules of fatty acyl coenzyme A react with glycerol 3-phosphate, then we get phosphatidic acid. ठीक है, this is the second reaction. Similarly, in the third reaction, the diacyl glycerol formation occurs from the dephosphorylation of phosphatidic acid. वो जो phosphatidic acid आपके पास थर्ड स्टेप में बन गया है, जब उसकी dephosphorylation होगी तो as a result we will get diacyl glycerol. And in the last step, formation of triacyl glycerol occurs. This is the final step in the biosynthesis of triacyl glycerol. तो अब इंडिविजुअली इनके रिएक्शंस देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन जिसमें क्या हुआ है कि फैटी एसिड कोएंजाइम ए और एटीपी के साथ मिलकर आपको फैटी एसिड की जो एक्टिवेटेड फॉर्म है दैट इज फैटी एसाइल कोएंजाइम ए उसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं। और चूंकि दिस इज अ फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन सो एटीपी इज यूज्ड and this is converted into AMP, and the enzyme that is used to catalyze this reaction is acyl coenzyme A synthetase. In the second reaction, formation of phosphatidic acid occur. इसमें क्या है कि जो fatty acyl coenzyme A फर्स्ट रिएक्शन में बन गए हैं, इस तरह के जब दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है, टू इंडिकेट दैट देयर आर टू मॉलिक्यूल्स, तो इसके टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट के साथ। ठीक है, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट हम पढ़ चुके हैं, लीवर और एडिपोज टिश्यू दोनों में बन रहा है, तो उसमें बनने वाला ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट और फैटी एसाइल कोएंजाइम ए के दो मॉलिक्यूल, दिस टू विल रिएक्ट टुगेदर फॉर्मिंग अ मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज फॉस्फेटिडिक एसिड। अब फॉस्फेटिडिक एसिड में क्या हुआ है कि ये देखें, कार्बन नंबर 1 पे जो OH है, कार्बन नंबर 2 पे OH है, इसका लिंकेज बन रहा है फैटी एसाइल के साथ। यहाँ पे भी एक फैटी एसिड अटैच हो गया है, यहाँ पे भी फैटी एसिड अटैच हो गया है, इनका ये जो एसाइल ग्रुप था ये रिलीज हो गया है। तो एज अ रिजल्ट दिस मॉलिक्यूल इज नाउ नोन एज फॉस्फेटिडिक एसिड। In the third step, this phosphatidic acid is hydrated and is converted into diacyl glycerol. यहाँ पे क्या होगा कि जो फॉस्फेटिडिक एसिड है वो डायएसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा और इसकी क्या होगी, इसकी होगी डीफॉस्फोरिलेशन। डीफॉस्फोरिलेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे देखें, इसके साथ ये जो फास्फोरिक एसिड ग्रुप मौजूद था, जब ये रिलीज हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे कि ये डीफॉस्फोरिलेशन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी डीफॉस्फोरिलेशन हुई है, फॉस्फेटिडिक एसिड का वो जो फास्फोरिक एसिड ग्रुप है वो रिलीज हो गया है, एंड ओनली वी आर लेफ्ट विद diacyl glycerol. Okay, now the last step is the conversion of this diacyl glycerol into triacyl glycerol by the addition of another fatty acid. क्योंकि diacyl glycerol में क्या है, डायमीन्स 2, तो उसमें सिर्फ 2 फैटी एसिड्स मौजूद हैं, जबकि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में 3 फैटी एसिड मौजूद हैं। तो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बनने के लिए वी नीड अनदर फैटी एसाइल कोएंजाइम A, and this fatty acyl coenzyme A when reacts with diacyl glycerol, that is formed as a result of conversion of phosphatidic acid to diacyl glycerol, we get triacyl glycerol and this coenzyme A is released. ठीक है, फैटी एसाइल कोएंजाइम A के साथ जो कोएंजाइम A पार्ट है वो रिलीज हो जाएगा, फैटी एसाइल का इस पर लिंकेज बन गया है विद diacyl glycerol and as a result this triacyl glycerol is formed. दिस इज द फाइनल स्टेप। इन 4 रिएक्शन से होकर आपके पास ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। द ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल फॉर्म्ड हैज इट्स स्ट्रक्चर लाइक दिस। दिस इज द ग्लिसरॉल पार्ट which has 3 carbon 1, 2 and 3, and these are the fatty acids attached with glycerol molecule. This is the first fatty acid chain, this is the second, and this is the third one. They are linked with ester linkage. This carbon, oxygen,
carbon linkage is actually the ester linkage. So all the three fatty acids are attached with ester linkage with carbon number 1, 2 and 3 of glycerol. और ये लास्ट में एक फ्लो चार्ट है जिसमें सिंथेसिस ऑफ ट्राई इथाइल ग्लिसरॉल के जनरल रिएक्शंस बताए हुए हैं। इसमें क्या है, ये आपका ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट या ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, इसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बिकॉज दिस फास्फोरिक एसिड ग्रुप इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 3। तो जो लिवर और एडिपोज टिश्यू में आपका ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बना था, ये वो वाली चीज़ है। अच्छा, अब इसके साथ ये देखें, एक फैटी एसाइल को इंजाइम ए है, ये रिएक्ट कर रहा है, उसका कोएंजाइम ए पार्ट रिलीज हो गया है। यहाँ पे जो इंजाइम यूज़ हुआ है इट इज़ एसाइल ट्रांसफेरेज और एज अ रिज़ल्ट आपके पास बन गया है लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड। यहाँ पे लाइसो का वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि सिर्फ अभी एक फैटी एसाइल कोएंजाइम ए इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, और उसका प्रोडक्ट बन रहा है। जब इस लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड के साथ अगेन दूसरा फैटी एसाइल कोएंजाइम ए रिएक्ट करेगा, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ एसाइल ट्रांसफेरेज कोएंजाइम ए इज रिलीज्ड, देन वी गेट फॉस्फेटिडिक एसिड जिसको हम कहते हैं डाई एसाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट। ये वाली चीज़ है, ठीक है, दिस इज द सेम थिंग। अच्छा, अब क्या होगा कि ये जो डाई एसाइल ग्लिसरॉल है इसकी डीफॉस्फोरिलेशन होगी। डीफॉस्फोरिलेशन में क्या होगा कि दिस फास्फोरिक एसिड ग्रुप इज नाउ रिलीज्ड। डी का मतलब है रिमूवल, सो दिस हैज़ बीन रिलीज्ड। यहाँ पे आप कार्बन नंबर 3 देख रहे हैं, यहाँ पे कोई फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप मौजूद नहीं है, वो रिलीज हो गया है। ओके, नाउ थर्ड फैटी एसाइल कोएंजाइम ए इज एडेड इनटू दिस रिएक्शन, इट्स कोएंजाइम ए पार्ट इज रिलीज्ड एंड वी गेट ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, that is the glycerol molecule with which 3 fatty acids are attached. So this is the whole process through which the biosynthesis of triacyl glycerol occurs.